Good morning. Reverend Father Varghese, Sister Theo, Sister Marie Lucille, Sister Dorrit, Sister Carol, sisters, teachers, and my dear parents. A warm welcome to you all on this annual General Body PTA meeting for the academic year 2010-2011. It is indeed a wonderful morning to see parents and teachers assembled together under one roof and in a united goal. Having a united goal in mind, the improvement and betterment of our children in Durello Convent. God, our friend, Mother and Father, may you be praised in your diversity of names and forms by the whole universe. May we experience a world guided by your values of justice, fraternity, equality, freedom, peace, hope, and love. May your will be the motive force of all our dreams and actions. Give us our daily food for body, mind, and soul. Strengthen us to forget and forgive without counting the cost. Forgive us our offenses as we forgive who offended us in the past. Bless all those who offend us now with your peace. Strengthen us always to stand for truth without fear and walk in the path of light with hope, trust, optimism, and creativity. Protect us from all evil forces and liberate us from hatred, despair, and depression. Om Shanti, Shanti, Shanti. Dear sisters, parents and teachers, a very good morning to all of you. And also a very warm and hearty welcome to each one of you. It's so nice to see you all. You have taken trouble to come here, and I'm happy to see you here. I'm here to thank you in a special way for all the support and timely help that you have rendered me during the last academic year. And I earnestly hope the same will continue in this new academic year too. Let's work together and hope for a great year ahead with God's blessings and on all our children. So parents, once again, a cordial welcome to all of you, and thank you for coming, and God bless you all. I now call upon Mrs. Judeline Villadaris to introduce to us the speaker of the day, Father Varghese. A very good morning to all of you present here. I am here to welcome our guest speaker, Father Varghese Alangaden, a priest from Indore with passion for human solidarity. Volumes can be spoken about Father Varghese, but since I am time-bound, I shall give you a brief introduction of him. Father Varghese is an internationally recognized personality with a passion for communal harmony, universal solidarity, social justice, peace education, animation of the youth, and honor and dignity of human beings. Father Varghese is a man of values and does not hesitate to challenge unjust structures. Father is a very good speaker who has inspired many parents, students, corporates, youth, religious, and clergy through seminars conducted by him on leadership, management, and spirituality.
Father has lived and worked with people of interior villages, not only in India but abroad too. Father Varghese is an artist and an author too, who has not only written and directed plays but acted too in several Hindi and Malayalam plays. His first Hindi play, Prem Samrat, was published in 1980, and his first book in English, Encounter, was published in 1990. Last but not the least is his international exposure. Father Varghese has been a participant of the International NGO Forum in Bangkok, Thailand. Father Varghese was also a special invitee to the UN General Assembly on World Drug Summit at the UN headquarters, New York, in 1998. So let us all welcome Father Varghese Alangaden with a round of applause. Welcome, Father. Sister Dorrit, the principal, Sister Theo, the manager, उपस्थित मेरे प्रिय मम्मी ढाडियों, आप सबको नमस्ते। जब मैं आज आपके सामने इस प्रकार खड़ा हूं, काफी भावुक होता। कारण क्या है? जब आपके सामने खड़े होकर बात करते समय मैं मेरे ही माँ बाप को याद करता हूं। भले ही वो पढ़े लिखे नहीं थे, गांव में रहने वाले थे, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं, जीवन के लिए जो बुनियादी चीजों की जरूरत है, बुनियादी सिद्धांतों की जरूरत है, जितनी मैंने मेरे माँ बाप से सीखा उतना मैंने कभी कहीं से सीखा नहीं है। पूरे इंडिया में बहुत सारे जगह पर गए, काफी किताबें लिख दिया हैं, काफी बड़ी सभाओं में संबोधित किया है, बड़े बड़े लोगों से मिलने का मौका मिला है। फिर भी मैं बताना चाहता हूं प्यारे दोस्तों, the fundamental lessons for living your life happily and successfully, those lessons I have learned from my parents. इसलिए मैं आप लोगों को देखने से काफी भावुक हो जाता। आप सब आज सुबह यहां पर इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, ध्यान से बैठकर मेरी बात सुन रहे हैं, क्योंकि आपको अपने बच्चों के प्रति काफी चिंता है। आप हर को आपके बच्चों के प्रति बड़ा सपना है, अपने बच्चों को सबसे अच्छी शिक्षा दें और वो आगे बढ़कर अपने पैरों पर खड़े हो जाए, यही आपका सपना है। और खुशी की बात है और हमारी प्रार्थना भी यही है, हमारी शुभकामना भी यही है कि आप सब सफल हो जाएं, आप सफल हो, आपके बच्चे सफल हो, आपको कामयाबी मिल जाए
लेकिन जिंदगी की हकीकत इस प्रकार है कि हमेशा हमारे सपना पूरा नहीं होते हैं। बहुत सारे माँ बाप के सपना टूट जाते हैं, अधूरा रह जाते हैं। मेरे ही एक दोस्त जो बेंगलोर में कॉलेज के अध्यापक हैं और उनकी बेटी को बेंगलोर शहर की सबसे अच्छी स्कूल में पढ़ने की मौका मिला और उसके बाद अच्छे से अच्छे कॉलेज में उनकी पढ़ाई हुई और नौकरी के लिए एक पहला इंटरव्यू में गई। इंटरव्यू के बाद वापस आई। पापा ने उनसे पूछा, बेटी आपका इंटरव्यू कैसे रही? नहीं पापा, मैंने अच्छा नहीं किया। I don't think I will be selected। समझदार बाप था, तो इसलिए उसने बता दिया, कोई बात नहीं है, चिंता मत करो बेटी, ये तो तुम्हारे पहले इंटरव्यू हैं, और भी मिल जाएंगे। लेकिन दूसरा दिन में उसको अपनी बेटी के लाश को अपनी कमरे के सीलिंग फैन में लटकते हुए मिला कि पहले इंटरव्यू का रिजल्ट तक नहीं आई। रिजल्ट आने के पहले ही उन्होंने हार मान लिया, दूसरे इंटरव्यू की इंतजार करने को भी तैयार नहीं। कि अच्छे माँ बाप के बच्चे उसको प्रोत्साहन देने वाले हैं, फिर भी। हमारे एक दोस्त पड़ोस में रहते हैं, बहुत ही अच्छे घर के लोग हैं। मम्मी सर्विस करती है, पापा का एक बिजनेस है। मम्मी जब सर्विस में जाते हैं, बड़ा बेटा स्कूल की पढ़ाई के बाद कॉलेज की पढ़ाई भी खत्म करके आईएएस की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। आईएएस की परीक्षा की तैयारी करना है तो बहुत बुद्धिमान तो जरूर है। बेटी एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है। रोज पापा जाकर बेटी को ले आते हैं स्कूल के बाद, और पापा बेटे तीनों मिलकर लंच खाने के रूटीन है। बेटी को स्कूल से लाए, टेबल सेट कर दिया, फिर बेटे को अपने कमरे में जाकर बुलाया, खटखटाया दरवाजा, कोई आवाज नहीं, दरवाजा अंदर से बंद। दरवाजा छोड़कर अंदर जब गए, उनको धक्का लगा कि अपना सपना जो है, जो बेटे के ऊपर जो सपना था, जो आईएएस बनने वाला लड़का, उसका लाश उनके कमरे के सीलिंग फैन में लटकते हुए मिलती है। और टेबल पर एक कोरा कागज में उन्होंने लिख कर रखा है मरने के पहले। क्या लिखा है? I have lost the essence of my life। मेरे जिंदगी का मकसद ही खत्म हो गया। उस समय समझ में नहीं आया। कुछ 2-3 दिन के बाद जब पता चला तो क्या है, जैसे आजकल के फैशन है, लड़के लड़कियों के लिए बॉयफ्रेंड होना, गर्लफ्रेंड होना, ये तो सामान्य हो गया। बर्थडे पार्टी में जाना, पिकनिक में जाना, माँ बाप उसको सामान्य रूप से लेते हैं। और इस लड़के की भी एक गर्लफ्रेंड थी, दूसरे धर्म की, दूसरी जाति की और दूसरी भाषा बोलने वाली है। लेकिन हमारे फिल्मी दुनिया बच्चों को कभी कभी पागल बना देते हैं, जवानी दीवानी होती है। दोनों ने निर्णय किया, कुछ भी हो, कोई हमारे प्रेम को रोक नहीं सकते, हम दोनों शादी जरूर करेंगे। परंतु लड़की के माँ बाप ने इतना दबाव डाला, परिवार वालों ने इतनी दबाव डाला, लड़की को अपने विचार को बदलना पड़ा, मजबूर कर दिया।
लड़की ने लड़के को एक फोन करके बोल दिया, देखो आप मुझे भूल जाइए, आई एम हेल्पलेस, मेरी शादी मेरे माँ बाप ने किसी दूसरे लड़की के साथ तय किया है और एंगेजमेंट का डेट भी फिक्स किया है। बस यही हुआ, दूसरे दिन उन्होंने खुदकुशी कर दिया। आईएएस की तैयारी करने वाला, देश को चलाने वाले, पूरे जिले का लॉ एंड ऑर्डर को संभालने वाले उस लड़के के जीवन का मकसद खत्म हो गया, क्योंकि उसकी लड़की गर्लफ्रेंड ने बोल दिया तुम मुझे भूल जाओ। ये जो है टाइम्स ऑफ इंडिया, कल तो हमारा रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आने पर हम देख सकते हैं कितने बच्चे नंबर कम होने से या फेल होने से कितने खुदकुशी कर लेते हैं। यहां पर है सुरणी नामक एक लड़की, सेंट्रल स्कूल में पढ़ती है, 11th स्टैंडर्ड में उसको 96% मार्क मिला, 96%। लेकिन she also hanged herself in her room, and what is written? I am not scared of death, but I am scared of this dirty world. dirty world क्या है किसी को पता नहीं है, लेकिन वो भी डिप्रेशन में आकर ही खुदकुशी कर दिया है। अब देखिए, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपने खूब इसको देख लिया है, देखते रहते हैं टीवी में। 2-3 दिन पहले ही आपने कलकत्ता के लड़के के बारे में सुन लिया था, प्रिंसिपल ने उसको सजा दिया, वो जाकर खुदकुशी कर दिया। क्या आप भी अपने बच्चों के प्रति इतना डरते रहते, पता नहीं वो क्या कर लेंगे। बच्चे भी आजकल ब्लैकमेल करने लगे माँ बाप को, हमें बहुत डर है इसलिए हम बच्चों को डांटते नहीं, इसलिए बच्चों को कोई सजा भी नहीं देते, पता नहीं क्या कर लेंगे मेरे बेटा, मेरे सपना है। ये तो सामान्य हो गया है। लेकिन एक बात मालूम आपको, कहां पर बच्चे खुदकुशी करते हैं? गांव के बच्चे, शहर के बच्चे, कहां पर आपने देखा है? शहर के बच्चे, वो भी अच्छे घर के बच्चे बहुत समय। गांव में जाओ, कोई बच्चे खुदकुशी नहीं करते क्योंकि एग्जाम में कम मार्क मिला या परीक्षा में फेल हो गया, कभी नहीं। 2 बार फेल, 3 बार, 4 बार, फिर भी पढ़ने जाएंगे वो। उन्हें इतना स्टैमिना है। गांव में आप देखेंगे नहीं लोगों को खुदकुशी करते हुए मच। शहरों की बीमारी है ये खुदकुशी, और वो भी बहुत इंटेलिजेंट समझने वाले बच्चे। कितने कोचिंग करने के बाद, कितने ट्यूशन देने के बाद आईआईटी में एडमिशन मिलते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलते हैं। कानपुर आईआईटी में एडमिशन मिलना बहुत बड़ी बात होती है। और देखना, हर साल 1 या 2 स्टूडेंट्स कानपुर आईआईटी के खुदकुशी करते हैं क्योंकि उनका सेमेस्टर परीक्षा में उन्होंने अच्छा नहीं किया। इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों को आप देख सकते हैं, सेमेस्टर परीक्षा में अच्छा नहीं किया, इसलिए वो डिप्रेशन में थी 3 दिन 4 दिन। वही हमको सुनने को मिलता है। एक बड़ी समस्या है आज हमको सामने करने की है, ये खुदकुशी की बात। हमारे सपना कहां पर टूट जाते हैं। हम चाहते हैं हमारे साथ ऐसा कुछ ना हो। दूसरी एक समस्या माँ बाप का बच्चों के से सामना करना पड़ते हैं कि बच्चों में जो बढ़ती हुई हिंसा की प्रवृत्ति, हिंसा विशेष रूप से ये लड़कों में होती है, लड़कियों में भी है, लड़कों में ज्यादा होती है हिंसा। पुराने जमाने में बच्चे जरूर लड़ाई करते थे, पत्थर फेंकते थे, आग किसी को मारते थे, ये सब सामान्य थे बच्चों के साथ। लेकिन आजकल क्या हो गया, चाकू भी छोड़ दिया, चाकू से वार करना भी छोड़ दिया। आजकल बच्चे बंदूक लेके आकर अपने दोस्तों को गोली से उठाने का वो
एक्सपर्ट भी होने लगा आजकल। आपने सुना होगा 3 साल पहले गुड़गांव हरियाणा के दिल्ली के पास के हमारे सबसे बड़े इंडस्ट्रियल हब है, वहां के एक इंटरनेशनल स्कूल में क्या हुआ, 9वीं क्लास में पढ़ने वाले 3 दोस्त मिलकर उनके ही दोस्त को स्कूल के टॉयलेट में 5 बार गोली चलाकर उसको हत्या किया था। बहुत सनसनी फैला दिया था। तो मैंने सोचा, हाँ देखो, बड़े बड़े घर के बच्चे हैं, इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने वाले हैं, वही ये करेंगे। अमेरिकन स्टाइल को अपनाया है। अमेरिका में बहुत होते हैं, गोली बंदूक लाके बच्चों, अपने दोस्तों को, अपने टीचर्स को गोली मारना अमेरिका के कल्चर बन गया। ये बड़े बड़े हमारे स्कूल में और इंटरनेशनल स्कूल में होगा, लेकिन ये भी सही नहीं हुआ। बस 1 महीने के बाद अखबार में फ्रंट न्यूज आते हैं, 10वीं क्लास के, वो भी मध्य प्रदेश के एक इंटीरियर जगह, एक इंटीरियर गांव में एक 10वीं क्लास के बच्चे ने अपने दोस्त को कंट्री मेड पिस्टल से गोली मारकर हत्या कर दिया। और आप सोचेंगे बच्चे अपने दोस्तों को ही मारते हैं, ऐसा नहीं, बच्चे अपने दोस्तों को ही नहीं, आजकल ये हुआ बच्चों को जो पैसा मिलने के लिए या बच्चों की बात नहीं मानने से वो अपने माँ बाप को, अपने अंकल चाचा को, अपने ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर जो भी उसके रास्ते में आते हो उसको सब खत्म करने का आजकल का एक कल्चर हमारे दुनिया में आने लगा। हमारे ही बच्चे हमारी गोद में बिठा के हमने जिस बच्चे को दूध पिलाया, जिसका हाथ पकड़ कर हम बड़े बड़े स्कूल में एडमिशन के लिए चक्कर काटा ना, और जिस बच्चे के लिए पूरे जीवन का सब कुछ अर्पित किया, उन्हीं बच्चों के द्वारा हमको मरना पड़ता है या हमको सुनना पड़ता है कि आपके बेटे ने वहां पर उस लड़के को हत्या किया, आपके बेटे ने उस लड़की के साथ बलात्कार किया। ये सुनने के लिए कभी हम चाहते नहीं है, लेकिन होते हैं। यही आज के समाज में होते हैं। यह तो सामान्य हो गया, एक रूटीन कार्य हो गया हमारे समाज में। प्यारे दोस्तों, आपने कभी जब टीवी में